and create magic. India is the land of learning yoga and Ayurveda. It is the land of hope and celebration. As we are celebrating 75 years of our independence, our magnificent country is a young and old nation. While we have conquered many peaks, innumerable peaks beckon. We have to continue to work relentlessly to fulfill the promises that we, the people of India, make to ourselves. The struggle is not only to help India regain her status as the Vishwaguru who will guide the world with the light of her wisdom, her ideas and her creations, but to also to help India restore her rightful status as the golden bird. The struggle is to bring a smile on each of the nation's 130 crore citizens. It is your chance, our chance, and my chance to pay the homage to the women's and men's who fought for our independence by building an incredible India that they would have been proud of. It is our chance to ensure that we contribute to the growth and the prosperity of our nation. AZADI ka AMRIT Mahotsav makes its incumbents upon us, we, the people of India, to come together as one nation that we are, and we will always to build a सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. जय हिंद. Thank you, Onik. Let's not take our independence for granted. Let's do our best to make India a better place. Legacy to live for and legacy to die for. So presenting before you, Let Our Country Awake by the students of SSD Public School. सबको तुम लोग लाइट ऑन वाइट लगी है ना हिंदुस्तान की आजादी की कहानी जंजीरों से जकड़े दिन और गुर काली अंधेरी रातों की कहानी जिनके अनगिनत पीठ और कंधों पर चढ़कर आजादी का सूरज हिंदुस्तान के आसमान में उठ गया। 1857 ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता का एक क्रूर, शातिर और दमनकारी चेहरा ईस्ट इंडिया कंपनी। The British came to grab their land, but here was the great Third Singh ready to sacrifice his blood with swords against the mighty guns. They came with guns, searching for the road singing in the hills. His people shed tears of sorrow. And thus he said, I will die like a king in the prison, but never a slave in my own land. Where the mind is without fear and the head is held high. Where knowledge
where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. Where words come out from the depth of truth. Where tireless striving stretches its arms towards perfection. Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of the AMRIT. Where the mind is let forward by thee into ever widening thought and action. Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. भाई मैं सोच रहा हूँ ये मेरा फोन ये सर तुम्हारा फोन तो मैंने दिया
Indian culture is known for its use of vibrant colors and remembered fondly as the country of symbolic colors. So here we have our tiny tots of SSD Primary to present a poem, Satrangi Rangosa, depicting the importance of different spirits in Indian culture. रिकॉर्डिंग हो रही है ये वहाँ ज़्यादा से गिराने से मुझे लाइट लाइट अब करेंगे तरह वाइट
personified indeed. चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। The saga of struggle began with the revolt of 1857 and continued till the independence. Rani Lakshmibai, Nana Rao, Tankrato fought bravely against the British rule. Now we have the unsung heroes from class 5 to 8 to present different movements that are Swadeshi and Boycott Movement, Simon Commission, Dandi March, Quit India Movement, Champaran Satyagraha, Rowlatt Act and Jallianwala Act against the colonial rule. लगभग समय जितना ही प्राचीन, सूर्य जितना ही तेजस्वी और आकाश जितना ही विशाल, हमारे भारत देश का इतिहास ज्ञान, विज्ञान और समृद्धि से सजा इतिहास, शौर्य, आध्यात्म और कलाकारी से झलकता इतिहास। भारत का इतिहास और अस्तित्व हजारों साल पुराना है। ये वह देश है जो सांस्कृतिक रूप से विश्व गुरु माना जाता है। आज हम आजादी की हीरक जयंती मनाने जा रहे हैं। यह दौर स्वतंत्रता के लिए किए हुए संघर्ष की गाथाओं को याद करने का है और इस संपूर्ण गाथा को मंच पर प्रस्तुत करने आ रहे हैं कक्षा 5 से लेकर 8 तक के विद्यार्थी। सर्वप्रथम चलते हैं मेरठ शहर की ओर। 10 मई 1857 के उस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भारतीय इतिहास का स्मरणीय अध्याय है। यह संग्राम भारतीयों के मन में स्वाधीनता की अलग जगाने में कामयाब रहा। आजादी की नींव पर खड़ी हुई ये भव्य इमारत हूँ। तभी आजादी ने कहा, मैं मंजिल नहीं रहा हूँ, अभी तो मैं शुरुआत हूँ। इस स्वाधीनता संग्राम में भारत के सैनिकों ने ब्रिटिश राज के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका था। इसमें भारत के कई वीर वीरांगनाओं ने अंग्रेजों का सामना करके अपनी वीरता और अदम्य साहस का परिचय दिया। मैं लक्ष्मीबाई हूँ, झांसी की रानी। झांसी को अंग्रेजों के हाथों में नहीं जाने दूंगी। आजादी की बस पहचानी थी।
बंगाल विभाजन 19 जुलाई 1905 को व्हाइट साइफरिज्म के द्वारा किया गया था। इसमें बंगाल को दो हिस्सों में विभाजित करने का निर्णय लिया गया। यह अंग्रेजों की फूट डालो राज्य करो वाली नीति का ही एक अंग था। इसके पीछे दो संप्रदायों को बांटने की उनकी चाल कई नेताओं के विरोध करने पर कामयाब न हो सकी। बंगाल विभाजन के विरुद्ध 2000 जनसभाओं में अंग्रेजों के इस षड्यंत्र के विरोध में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन ने भी साथ दिया, जिसमें लोगों से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने तथा स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का अनुरोध किया गया। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इस आंदोलन की जड़ें समस्त भारत में फैली। जगह जगह पर लोगों ने विदेशी वस्तुओं की होली जलाई। इस आंदोलन से लोगों में भारतीय वस्तुओं के प्रति रुचि उत्पन्न हुई, जिससे भारत के औद्योगिक विकास को मदद मिली। Lord Curzon, the Viceroy of Indian British Conservative Province of State, hereby declare that the Bengal is being divided into two territories, the East Bengal and the West Bengal. Bengal, being such a huge province, needs good administration and management. Therefore, the eastern part will be taken care by the Muslim representatives and the western province by the Hindus. Without any question, I confirm the divided states of Bengal. What is all this happening around us? What is Swarangis actually want to do? We can't think. What do they want and why do they want all this? Please go and call Mr. Sanatan Banerjee, as he only can give a solution to the divide and rule policy given by the Britishers. Okay, sure. What happened, Mrs. Chatterjee? Why are you so puzzled and agitated? Good morning, Bonus. Good morning, Mr. Banerjee. I know that the testing times have begun. The Firangis are trying to create riots. They want to suppress the Indian unity and take advantage of religious differences. But it's time to act. Yes, I understand that they are now attacking us on the basis of religion so that we fight against each other. This will make us enemies and they will be benefited from our fights and problems. They want to divert our attention from their ill deeds and get muddled up in religious conflicts. Oh my God, I really never thought in such a manner. They have such a cruel plan. So now, what's next? What are we going to do? Will we fight with our brothers, sisters and our own countrymen? No, not at all. We need to understand their strategy and not let them fulfill their unwanted demands. Yes, you are right. So how are we going to do all this? Do you have any plan? What is the next step, Mr. Banerjee? We have to generate awareness amongst the masses to boycott the British. My newspaper, the Bengali, will do it. We have to launch powerful press campaigns. Acharya Roy, you contact with Mr. Lokman Tilak, a member of Indian National Congress in Mumbai and Pune. He will lead our boycott movement there. Okay, sure, sir.
Now, Mr. Shyam Sundar Chakraborty, you have to organize strikes and forward your action plans to Lala Lajpat Rai in Punjab. He will lead in the northern part of India. See, here comes Aurobindo Ghosh. Vande Mataram, sir. How is your college going? Vande Mataram. National College is doing well, and I am doing my best to encourage nationalistic and patriotic thinking. The spirit of boycott movement can only be promoted by the Swadeshi movement. My Anushilan Samiti is doing the needful, and I have come here to tell you about the same. Once their business will suffer loss, they will certainly realize their mistake and run away from India. Yes, when they will see the downfall in their sales, they have to fulfill our demand and they do not have any other option. Yes, you are right. You people are the torchbearers of the Indian Swadeshi movement. You have comprehended all very well. Bring your British products. Let us all burn them to ashes. Let us all pledge to use only Indian products. Acharya, what will you do to encourage the Swadeshi movement? I, Acharya P.C. Roy, pledge that I will open chemical factories in Bengal to promote Swadeshi products. Let us all take a vow that we will overcome all hurdles that fall our way and emerge victorious with our determination and perseverance. Vande Mataram! Vande Mataram! Vande Mataram! एक तो सूखे के कारण सारी फसल बर्बाद हो गई है और यहाँ तो खाने के लाले पड़े हैं और इस नील की खेती का बोझ। ये नील की खेती करें हम और पैसे लूटे व्यापारी। हाय, हम क्या करें?
अरे मुझे तो कोई रास्ता ही दिखाई नहीं देता। जमींदारों ने हमारे खिलाफ 3 ऐसे कानूनों पे हस्ताक्षर कर दिए हैं। हे राम। अरे मैंने तो सुना है कि हमारे कुछ किसान भाई गांधी जी से इस बारे में बात करने गए। अब तो बस उन्हीं का सहारा है, वो जरूर कुछ करेंगे। गांधी जी, हमने तो आपको सब कुछ बता दिया है, अब आप ही बोलिए कि अब हम क्या करें। हाँ, मैं जानता हूँ, हमें हमारे अधिकार के लिए लड़ना होगा। क्या आप सब तैयार हैं? हाँ, हम सब तैयार हैं। लड़ाई, ना कोई हथियार, ना कोई ताकत। हाँ, हम बिना हथियारों के कैसे लड़ पाएंगे? हमें ना कोई हथियार चाहिए, ना ही शारीरिक बल। हम किसी को हानि नहीं पहुंचाएंगे, ना ही करेंगे हिंसा। हम करेंगे सत्याग्रह। सत्याग्रह? वो क्या होता है? सत्य के प्रति अटूट विश्वास, खुद के ऊपर भरोसा और दृढ़ संकल्प ही सत्याग्रह है। वो तो हमारे पास है। आपकी जीत निश्चित है। मुझे आपके अंदर नया भविष्य दिखाई दे रहा है। तो फिर आइए सत्याग्रह के लिए चलते हैं। भारत माता की जय, गांधी जी की जय, गांधी जी की जय। This is a much fun for you, Mr. Gandhi. अरे ये क्या हो रहा है? शांति शांति। भारत माता की जय, गांधी जी की जय। जब से चंपारण में आए हैं, यहाँ आजादी फैल गई है। इन्हें यहाँ से बाहर चले जाना चाहिए। हाँ तो मिस्टर गांधी, आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है? मेरे लॉर्ड, आपकी आज्ञा से बस इतना ही कहना चाहूँगा। किसी की सहायता करना बुरा है तो मैं अपराधी हूँ। बातों को यूं मत छोड़िए। अब तो ये आप मान चुके हैं कि चंपारण के किसानों को आप ही हमारे खिलाफ कर रहे हैं। वकील साहब, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। आप तो बिना वजह मुझे दोषी ठहरा रहे हैं। चलिए, आपका यह आरोप मान ही लिया जाए। देखिए लॉर्ड, मिस्टर गांधी अपनी गलती न मानकर अदालत का समय बर्बाद कर रहे हैं। मिस्टर गांधी, आपको जो भी कहना है सीधा और साफ कहिए। यस योर ऑनर, मैं जो भी कह रहा हूँ सीधा, साफ और सत्य कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये आखिरी बार आप कोई बात कहना चाहेंगे? जी हाँ, क्यों नहीं। मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि चंपारण में अपने मित्र के आग्रह करने से आया हूँ। उस समय उसने मुझे जो भी बताया मुझे विश्वास नहीं हुआ, पर यहाँ आकर मैंने जो भी देखा वो उससे भी बुरा था जो मुझे बताया गया था। तो ऐसा क्या देख लिया आपने? मैंने देखा गरीब किसानों के घरों में भूख से बिलखते बच्चे, औरतें, बूढ़े, जवान दिन भर काम करने के बाद भी 2 वक्त का भोजन नहीं जुटा पाते। फिर आपकी सरकार को लगान देना पड़ता है। कैसे संभव है? ओह, तो आप सरकार के कानून को चैलेंज करने आए हैं, है ना? आप जानते ही हैं इसका नतीजा क्या होगा। वकील साहब, मैं यहाँ कोई तोड़फोड़ करने नहीं आया हूँ। मैं तो इन चंपारण के किसानों की दुविधा का प्रश्न लेकर आया हूँ। वैसे जो काम मैं कर रहा हूँ वो तो आपकी सरकार को करना चाहिए। प्रजा सुखी तो सरकार सुखी। सरकार को आपके इंटरफेरेंस की कोई जरूरत नहीं है। वकील साहब, तो ठीक है, मेरे भोले भाले किसान भाई सत्य और अहिंसा की लड़ाई तब तक लड़ेंगे जब तक उन्हें इंसाफ ना मिल जाए। देखिए लॉर्ड, मिस्टर गांधी लड़ाई की धमकी दे रहे हैं। इनकी बातों पर गौर ना किया जाए। मेरे लॉर्ड, मिस्टर गांधी अभी तक इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि वो इतनी दूर से चलकर चंपारण क्यों आए हैं। ऑर्डर, ऑर्डर। आप गुस्से मत आए वकील साहब।
मैं चंपारण के किसानों को अपना भाई समझता हूँ। उनकी ओर से नम्रता पूर्वक यह आग्रह करने आया हूँ, चंपारण में सरकार नहीं सुधरेगी तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। सरकार चाहे तो मुझे इस बात की सजा दे सकती है। मिस्टर गांधी, अगर आपको नील की खेती में समस्या है, लगान की समस्या है, तो आप सबूत ले आइए और जो चाहे वो हो जाएगा। ठीक है योर ऑनर, मैं सबूत जरूर पेश करूंगा। तो ठीक है, द कोर्ट इज एडजर्न्ड। गांधी जी की जांच का यह नतीजा निकला कि अंग्रेजों द्वारा किसानों पर जो शोषण किया जा रहा था उसे उन्होंने बंद कर दिया तथा 100 वर्षों से चली आ रही 3 कट्टा खेती प्रथा को भी समाप्त कर दिया गया। गांधी जी द्वारा किया गया चंपारण सत्याग्रह सफल रहा। वर्ष 1919 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ने नई दिशा दी। भारतीयों के अंदर का ज्वालामुखी तब फट पड़ा जब ब्रिटिश सरकार द्वारा रोलेट एक्ट यानी काला कानून लागू किया गया। यह राष्ट्रीय आंदोलनों को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित किया गया था। यही वह समय था जब भारतीयों ने अनुरोध की रणनीति को छोड़कर आमने सामने का विरोध किया। इसकी चिंगारी से अंग्रेजी सल्तनत हिल गई। अमृतसर का जलियांवाला बाग जिसे याद करते ही आंखों से सहसा अश्रु निकल आते हैं। वृद्ध, जवान और मासूमों की चीख पुकार और सिसकियों से हृदय सीधा उठता है। अत्याचारी जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के महासभा पर अंधाधुंध गोलियों की बौछार कर क्रूरतम नरसंहार किया कि समस्त देशवासी स्तब्ध रह गए। सुनो 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 सुनो, हर खाशाम को इत्तला दी जाती है जनरल डायर के हुक्म से मार्शल लॉ लगा दिया गया है। इसलिए जो भी रात के 8 बजे के बाद घर से बाहर निकलेगा उसे गोली मार दी जाएगी। सुनो 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 सुनो। अरे अब ये कौन सी नई मुसीबत आन पड़ी? भाइयों, अब हमें घर से बाहर निकलने की आजादी भी नहीं रही। मेरा क्या होगा? मैं तो मजदूरी करके रात को 10 बजे वापस आता हूँ। साडे मुल्क विच रहकर साडे उत्ते हुकूमत चलाने ने अगो। सुनो भरावो, सानू इन अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठानी ही पड़ेगी। बिल्कुल सही, इसी तरह हम इन अंग्रेजों को अपने देश से खदेड़ सकते हैं। सुनो ब्राह्मण, कल बैसाखी का दिन है, फिर कल सारे जने जलियांवाला बाग पे इकट्ठे होकर अपने नेतावादा भाषण सुनाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बैसाखी का मेला किथे करांगे? जलियांवाला बाग करांगे। बैसाखी का मेला किथे करांगे? जलियांवाला बाग करांगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। और बहनों, आप सब लोग जानते ही होंगे कि इन गवर्नरों ने हम हिंदुस्तानियों पर कितने जुर्म किए हैं और अब तो हद ही हो गई कि हमें हमारे घरों से निकलने की आजादी भी नहीं रही। और हाँ, इस अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विरोध करते हैं। अंग्रेजी सरकार भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। अंग्रेजी सरकार भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। तुम लोग हमारी किसी बात को नहीं माना। हमने मार्शल लॉ लगाया, तुमने उसका उल्लंघन किया। तुम लोग सरकार से गद्दारी करता है, उसका रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ता है। तुम्हें इसका पनिशमेंट जरूर मिलेगा।
जब लोग फ्रीडम आता है मिलेगा कंप्लीट फ्रीडम मिलेगा। सोल्जर्स टेक पोजीशन एंड फायर। Ha ha ha! Freedom, you get it. यहाँ वो किला नहीं, काक है शोर मचाने, काले काले की भ्रमर का भ्रम उपजाते। कलियां भी अनखिली मिली है कंटक कुल से, वे पौधे वे पुष्प शुष्क है अथवा झुल से। परिमलहीन पराग दाग सा बना पड़ा है। हाँ, यह प्यारा पान खून से सना पड़ा। आओ प्रिय ऋतुराज, किंतु धीरे से आना। यह है शोगिस्थान, यहाँ मत शोर मचाना। कोमल बालक मरे यहाँ गोली खा खा गए, कन्या उनके लिए ज्ञाना थोड़ी लाकर। आशाओं से भरे हृदय भी छिन्न हुए हैं, अपने प्रिय परिवार देश से भिन्न हुए हैं। कुछ कलियां अनखिली यहाँ इसलिए चढ़ाना, करके उनकी याद अशुभी को से बहाना। तड़प तड़प कर वृद्ध मरे हैं गोली खाकर, शुष्क शुष्क कुछ खा गिरा देना तुम जाकर। यह सब करना किंतु बहुत धीरे से जाना। यह है शोगिस्थान, यहाँ मत शोर मचाना, यहाँ मत शोर मचाना। 1926 में अंग्रेजों ने संविधान संशोधन की संभावना को देखते हुए एक आयोग का गठन किया। इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। 8 नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ। इसमें संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए 7 ब्रिटिश सांसदों को ही दिया गया। इसमें भारतीय नेताओं के सम्मिलित न होने से सभी अंग्रेजों से असहमत थे। फरवरी 1928 में इस आयोग के भारत में लागू होने पर इसका विरोध काले झंडों से व साइमन वापस जाओ के नारों से किया गया। इसमें सभी भारतीय सक्रिय रूप से शामिल थे। Simon, go back! Simon, go back! वंदे मातरम! भारत माता की जय! भारत माता की जय! हिंदुस्तानी है हम, हिंदुस्तान है हमारा। वापस जाओ साइमन, जहाँ देश है तुम्हारा। What are they saying? Do you understand their language? Yes, I do, sir. They are saying we are Indians and Indians are. Simon, go back to your country. Simon, go back! Simon, go back! वंदे मातरम! What are they saying now? Don't worry, sir. I've got this standing order of governor to deal with the crowd whatever way suitable. Then deal with it for heaven's sake. तुम लोग यहाँ से चले जाओ, अदरवाइज हम तुम्हें अपना पापा दिखाएगा। यहाँ से चले जाओ। Hit him. He is their leader. The shots that hit me are the last nails on the coffin of British rule in India. I declare war. We will get Swaraj. Bharat Mata ki जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! आखिर उस दिन की शुरुआत हो ही गई। 26 जनवरी 1930, जिसे स्वाधीनता संग्राम के रूप में चुना गया। सभी लोगों ने देश को स्वाधीन कराने की शपथ ली। कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी को सौंप दिया। गांधी जी ने इस आंदोलन की शुरुआत अन्यायपूर्ण नमक कानून को तोड़कर की। नमक कानून तोड़ने वाले भारतीयों पर ब्रिटिश सरकार द्वारा लाठीचार्ज किया गया। सभी जनवासी साइमन रिपोर्ट से असंतुष्ट थे और समस्त राष्ट्र ने इसका विरोध किया तथा गांधी जी ने पुनः
देशव्यापी सत्याग्रह का आह्वान किया। उन्होंने कहा, भारत अपनी सुरक्षा स्वयं करेगा, वह आत्मनिर्भर बनेगा। We are Indians. I regard British rule as a curse. It has set the foundation of our culture and degraded us spiritually. We have been reduced to a state of helplessness and political suffer. The salt tax law is completely unfair from the poor man's perspective. We have to take a step ahead beyond passive resistance. We should never submit to such laws ever. It's a battle of pride against the might. गांधी जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। गांधी जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। गांधी जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। Man needs salt as he needs air and water. This salt comes from Indian Ocean and every Indian claimed his right. I have faith in the righteousness of our cause and purity of our weapons. And where the means are clean, the God is undoubtedly present with their blessings. And where these three combine, their defeat is an impossibility. A satyagrahi, whether free or incarcerated, is ever victorious. he is deliver, Hey, deliver! he is deliver, Hey, deliver! वंदे Mataram! वंदे Mataram! long live Gandhi ji! long live Gandhi ji! अब गांधी जी ने अपना तीसरा बड़ा आंदोलन चलाने का फैसला किया। इसे 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नाम दिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार किया गया, पर लोग विरोध प्रदर्शन करते रहे। यह सच्चे अर्थों में एक जन आंदोलन था। इसने बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। ये बात 1942 की है, जब त्रिप्स प्रस्ताव लेकर गांधी जी और उनके साथियों के पास आए थे। लेकिन गांधी जी ने सहयोग से साफ इनकार कर दिया। विश्व युद्ध के कारण संघर्ष ऐसे हीन होता जा रहा था। 8 अगस्त 1942 में नेशनल कांग्रेस की बैठक में गांधी जी ने कहा, एक मंत्र है छोटा सा जो मैं आप सबको देना चाहता हूँ, करो या मरो, करो या मरो। या तो हम अपने भारत को आजाद कराएंगे या उस कोशिश में अपनी जान दे देंगे, परंतु अपनी गुलामी देखने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। आज से हमारा नारा होगा, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। 9 अगस्त की सुबह ही गांधी जी और बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर आगा खान पैलेस में रखा गया। सरकार के इस कदम से जनता चकित रह गई। उनके पास ना तो कोई दिशा निर्देशक था, ना तो कोई रास्ता दिखाने वाला नेता। उनके पास था तो सिर्फ गांधी जी का दिया हुआ मंत्र, करो या मरो। इस समय 60,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए, 18,000 लोग नजरबंद किए गए और 940 लोग मारे गए। गांधी जी ने 10 फरवरी से जेल में उपवास शुरू कर दिया। गांधी जी के उपवास की खबर जैसे जैसे बाहर फैलने लगी, लोगों का आक्रोश बढ़ता गया। जगह जगह रैलियां और नारे लगने लगे, करो या मरो। गांधी जी को 6 मई 1944 को बीमारी के आधार पर रिहा कर दिया गया। आखिर आ गया वह दिन जिसने हिंदुस्तान के इतिहास, भूगोल व भविष्य को बदल कर रख दिया। 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि जैसे ही समाप्त हुई, भारत के भाग्य देकर सूर्य चमक उठा। एक नए जीवन
और स्वाधीनता को लिए हुए भारत स्वाधीन हुआ। पूरा देश आजादी के जश्न में सराबोर था और विराट संसार का ध्यान इस ओर आकृष्ट हो चुका था कि अब भारत विश्व के परिदृश्य पर एक महान शक्ति के रूप में अवतरित होने वाला है। अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति न प्राण भरो। नया प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नहीं, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नहीं। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, पुनः नया निर्माण करो। The time comes when we shall redeem our faith, not wholly or in full measure, but very substantially. Indeed, the sacrifices of our nationalists mean us all to bow down our heads in great respect and honor. May I now humbly solicit our Honorable Pradhan Mantri Sir, Kuch Bihari Ji, to kindly address us all on this red letter day. प्रेरक और अनुकरणीय व्यक्तित्व के धनी आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमती मंजू भाटिया जी, श्री सनातन धर्म सभा और सभा द्वारा संचालित विद्यालयों के प्रबंध समिति के पदाधिकारीगण एवं सदस्य, चारों विद्यालयों के प्रधानाचार्य, सहयोगी आचार्य और आचार्य, आप सबको स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज का दिन अति महत्वपूर्ण इसलिए है कि हम स्वाधीनता के 75 वर्ष पूर्ण कर चुके और इसलिए पूरे देश में यह अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। हम जब कोई उत्सव मनाते हैं तो स्मरण करते हैं उन कारकों का जिसकी वजह से वो उत्सव मनाया था। इस देश सैकड़ों वर्ष पराधीन रहा और उस पराधीनता से जो स्वाधीनता हमको मिली वो बहुत सहज, सरल और आसान नहीं, उसके लिए बहुत बड़ी कीमत अदा करें। और इसलिए हमारा कर्तव्य होता है कि हम आज के दिन उन वीर महान सपूतों को, आजादी के दीवानों को स्मरण करें जिनके प्रयत्नों से हमें आजादी मिली। सैकड़ों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, अनेक लोगों ने उस आजादी के संघर्ष में संघर्ष करके अनेक प्रकार के कष्ट सहे। हम आज के दिन उन महान बलिदानियों को जिन्होंने अपना प्राणों की आहुति दी
उन्हें स्मरण करते हैं, अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उन वीर महान स्वतंत्र वीरों का स्मरण करते हैं जिन्होंने संघर्ष करके कष्ट पाए, उनसे प्रेरणा लेते हैं और आभार व्यक्त करते हैं कि उनके संघर्ष के कारण हमें आजादी मिली। आज कई बार बहुत कष्ट होता है कि हमारी नई पीढ़ी पुराने क्रांतिकारियों को, स्वातंत्र वीरों को उनके नाम से स्मरण नहीं कर पाती। अभी बहुत अच्छे कार्यक्रम हुए यहाँ पर, इसमें झांसी की रानी का स्मरण हुआ, लाला लाजपत राय का स्मरण हुआ, गांधी जी का स्मरण हुआ। खाली यही लोग नहीं, हर तरह के लोगों ने आजादी के कार्यक्रम में योगदान दिया और उनके कुछ स्वप्न थे जिसके लिए उन्होंने आजादी के लिए संघर्ष किया। 75 वर्ष बाद आज वास्तव में अपने आत्मचिंतन, आत्मालोकन की आवश्यकता है। हमें समीक्षा करने की जरूरत है कि आज जो स्वप्न हमारे उन स्वतंत्र वीरों ने देखे थे वो हम साकार कर पा रहे हैं क्या? अनेक धाराओं के लोगों ने आजादी के आंदोलन में संघर्ष किया, जिसको उस समय की भाषा में गरम दल और नरम दल कहते थे। अनेक क्रांतिकारियों ने किया और सबका सम्मिलित परिणाम था कि हम आजाद हुए। आज विज्ञान का समय है, टीवी पे कार्यक्रम आता है टाइम मशीन का। यदि व्यवहारिक रूप से वास्तव में यदि वो महापुरुष अगर आज की तारीख में हमारे सामने प्रकट हो जाए और हमसे पूछें कि हमने जो स्वप्न देखा था उसमें आप कहां तक आगे बढ़े। आजादी के आंदोलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना योगदान किया। वो अगर हमसे पूछें कि जिस समता मूलक समाज की मैंने कल्पना की थी, जिसमें सब बराबर होंगे, आजादी के 75 वर्ष के बाद क्या देश में वो स्थिति आ पाई? गांधी जी ने हमको अहिंसा का आंदोलन, अहिंसा का मंत्र दिया। वे हिंसा के विरोधी थे। आज अगर वो आ जाए और हमसे पूछें कि स्वतंत्रता के आंदोलन में हमने अहिंसा का स्वप्न देखा था, लेकिन आज जगह जगह संघर्ष हो रहे हैं, कोई मिल के नहीं रहना चाहता, कोई जुलूस निकलता है तो उस पर कोई दूसरा पंथ संप्रदाय के लोग पथराव करते हैं। हमारी सहिष्णुता कुछ कम हो गई है। यहाँ पर भी एक दृश्य दिखाया गया कि हमने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। आज सावरकर अगर आ जाए, जिन्होंने शायद उस आंदोलन का प्रारंभ किया था, वो हमसे पूछें कि हम कितना स्वदेशी अपनाते हैं, तो हम अपना मूल्यांकन, अपना विवेचन करने की जरूरत है। मित्रों, सावरकर एक ऐसे क्रांतिकारी हैं विश्व में अनोखे, जिन्होंने हमको प्रेरणा दी, और अनोखे इसलिए कि उनको 2 जन्मों के काले पानी की सजा मिली। जिस ब्रिटिश जज ने उनको सजा दी थी उसकी भी मान्यता नहीं थी कि पुनर्जन्म होता। ये सनातन धर्म में हमारी व्यवस्था है कि पुनर्जन्म होता है, आखिर कुछ तो भी किया। ऐसे अनेक स्वातंत्र वीर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने छुप करके भारतवर्ष से जाकर के आजाद हिंद फौज का गठन किया, और बहुत बड़ा कारण था देश की स्वतंत्रता का वो आजाद हिंद फौज। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब नारा दिया तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो, उस आह्वान पर उस समय की जो मिलिट्री थी, जो अंग्रेजों के आधिपत्य में थी,
उसमें बहुत बड़ा विद्रोह हुआ और हजारों हजारों की संख्या में सैनिक आजाद हिंद फौज की तरफ से लड़ने के लिए तैयार हुए। असम का मोइरंग नाम का एक स्थान जहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले तिरंगा फहराया। मित्रों, किसी एक अवसर पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने एक जगह कहा है कि आजादी पाना जितना कठिन काम था, आजादी पाने के लिए जितना हमने संघर्ष किया, आजादी को कायम रखना उससे ज्यादा कठिन है और उससे ज्यादा संघर्ष हमको करना पड़ेगा। आज 75 वर्ष के बाद हम देखते हैं कि देश के हित के लिए सोचना एक मत होकर के ये शायद संभव नहीं होगा। कहीं अपनी राजनीति चमकाने के लिए, कहीं अपना अस्तित्व दिखाने के लिए हम विभिन्न प्रकार की भिन्न भिन्न भाषा बोलते हैं। और इसलिए आज स्वतंत्रता दिवस के दिन हम कुछ संकल्प लें। मैंने 2 दिन पहले भी एक बार यहीं के कार्यक्रम में कहा था कि छोटी छोटी चीजें बापू ने हमको सिखाया है कि ये जो स्वदेशी आंदोलन, विदेशी कपड़ों की होली जला देना, असहयोग आंदोलन, अहिंसा करना, ये बात छोटी छोटी है, लेकिन इनके परिणाम बहुत बड़े आ गए। और इसलिए एक छोटा सा संकल्प अगर आज हम लेंगे कि मैं अपने देश से प्यार करूंगा, मैं अपने देश के हर देशवासी से प्यार करूंगा और देश के अंदर निर्मित चीजों का उपयोग करूंगा। भारतवर्ष बहुत ही समृद्धशाली देश रहा। लोग सुना होगा आप सबने भी, ढाका की कोई मलमल होती थी, सुनते हैं कि अंगूठी के बीच में से निकल जाए। आज विज्ञान इतना तरक्की कर गया है, लेकिन फिर भी 200 काउंट से महीन सूत नहीं बन सका जिससे कि ढाका जैसी मलमल बन सके। पराधीनता के काल में कुछ कारीगरों ने अद्भुत अनूठी कुछ कलाकृतियां बनाई और जो उस समय के शासक थे उन्होंने उनके हाथ कटवा दिए। यही पराधीनता का परिणाम। स्वाधीन होने के बाद हम बहुत तेजी से उस दिशा में बढ़ गए। हम विश्व के अन्य देशों के उपग्रह आज अपनी तकनीक के माध्यम से छोड़ रहे हैं। भारतवर्ष अनेक अभियान ले रहा है। आज जहां पर पराधीनता के काल में देश में सुई भी नहीं बनती थी, आज हमारे यहाँ मिसाइल्स बनती हैं, टैंक बनते हैं और हम उसके आधार पर एक समृद्ध भारत के रूप में सबके सामने खड़े हैं। कुछ दिनों पूर्व टीवी पे कार्यक्रम आ रहा था, क्या भारत पुनः विश्वगुरु बन सकता है? उसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम सब अगर निष्ठा के साथ देशभक्ति के भाव से देश के लिए काम करेंगे तो कोई दिन दूर नहीं जब हम विश्वगुरु कहलाएंगे। और उनके उत्साही और ओजस्वी उद्बोधन से प्रभावित होकर के अमित शाह जी ने, देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने तो समय सीमा भी बांध दी कि 2025 के बाद अगर 20 वर्ष हमने देश के हित में निष्ठा से काम किया तो 2045 में भारत विश्वगुरु बन सकता है। विद्यालय के जो बच्चे यहाँ हैं उन सब से मेरा निवेदन कि ये गुरुतर दायित्व अब उनके कंधों पर है। आज हम जहाँ तक पहुँच सके इससे आगे तेजी से बढ़ना वो आपके कंधों पर है। वो आप उसको नेतृत्व देंगे तो निश्चित रूप से जो स्वप्न है हमारा विश्वगुरु बनने का, जो हम थे पहले कभी, वो हम बन सकेंगे। पुनः स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाओं के साथ
and preserve. Our glorious culture, tradition, and heritage make me feel proud to be an Indian. With this feeling of honor and pride, our students of SSDEC are here to giggle in their presentation before you. Jai India!
Unity in diversity will be the beauty and the test of our civilization. Unity in diversity in India implies the feeling of oneness and togetherness. So here we have the students of SSD Primary School to perform Unity in Diversity. Schemes, bright with thy orchard gleams, cool with thy winds of delight, dark fields bathed, mother of might. वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो
की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की लड़ेंगे तुमको हार दो। आरंभ है प्रचंड What a mesmerizing glimpse of exclusive and unique diversity. Housed in one country, India indeed, Mera Bharat Mahan. I will now hand over the podium to the representative of Shree Sanatan Balika Vidyalaya. मातृभूमि की सेवा के वादे न किए लंबे चौड़े, मातृभूमि की सेवा के वादे न किए लंबे चौड़े, माँ के अर्चन हित पुष्प नहीं वे निज मस्तक लेकर दौड़े। भारत का खून नहीं बदला, भारत का खून नहीं बदला, वे खून बहा कर दिखा गए। जग के इतिहासों में अपनी गौरव गाथाएं लिखा गए। उन गाथाओं से सर्द खून को मैं गरमाया करती हूँ। मैं इस पीढ़ी में उस पीढ़ी के भाव जगाया करती हूँ। मैं इस पीढ़ी में उस पीढ़ी के भाव जगाया करती हूँ। यहाँ पर उपस्थित सम्माननीय अतिथि महोदय एवं समस्त विद्वज्जन, आज आप सभी को आजादी के अमृत महोत्सव की इस पावन बेला पर हार्दिक शुभकामनाएं। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे, इसी भावना को लिए हुए आज हम सब भारत का अमृत वर्ष मना रहे हैं। देश की आजादी का अमृत महोत्सव कोटि कोटि भारतवासियों का पर्व है, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम की परछाई भी है, अपनी ताकत को फिर से खोजने का प्रोत्साहन भी है तथा गौरवान्वित करने वाली प्रगति भी है। यह आजादी का अमृत महोत्सव प्रगतिशील भारत की आजादी के 75 साल और उसके लोगों, संस्कृति एवं उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को मनाने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। यह उत्सव आजादी की ऊर्जा का उत्सव है, स्वतंत्रता सेनानियों की स्वाधीनता का उत्सव है, नए विचारों का उत्सव है, नए संकल्पों एवं आत्मनिर्भरता का उत्सव है। इन पिछले 75 वर्षों में भारत ने कई क्षेत्रों में तीव्र प्रगति की है, फिर चाहे वह सांस्कृतिक सामाजिक क्षेत्र हो
या फिर राजनीतिक आर्थिक क्षेत्र हो, सैन्य, खेल एवं तकनीकी के क्षेत्र में भारत ने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। 75 वर्षों की इस विकास यात्रा में नए कीर्तिमान बने हैं। आज भारत संपूर्ण विश्व पटल पर एक सशक्त राष्ट्र के रूप में है। अपने वतन भारत को अंग्रेजी दास्तां से मुक्त करवाने के लिए ऐसे कई शूरवीर देशभक्त बलिदान हो गए, जिनके अथक संघर्ष, अटूट निश्चय और अनूठे शौर्य के परिणाम स्वरूप ऐसे ही महान स्वतंत्रता का सूर्योदय संभव हो सका। ऐसे ही महान पराक्रमी, सच्चे देशभक्त और स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी के रूप में सरदार भगत सिंह एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। आजादी के इस अमृत महोत्सव पर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आगाज किया है कि हर घर तिरंगा फहराएंगे, क्योंकि हमारा गौरव, हमारी शान, तिरंगा ध्वज ही हमारी पहचान, जिससे संपूर्ण देश के जन जन के मन में देशभक्ति की लहर दौड़ गई है। हर प्रतिष्ठान, हर विद्यालय देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। इसी श्रृंखला में श्री सनातन धर्म बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं द्वारा देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण आजादी की अभिव्यक्ति करता हुआ प्रस्तुत है यह कार्यक्रम। फरवरी 1931। अच्छा, हमने तुमको चारों तरफ से घेर लिया है, बाहर आ जाओ वरना मारे जाओगे। सीने पे दुश्मनों की गोली न सहेंगे। आजाद थे, आजाद हैं, आजाद ही रहेंगे। माँ भारती, मुझे माफ करना, मैं तेरी इतनी ही सेवा कर सका। वंदे मातरम। 23 मार्च 1931। भगत सिंह, तुम्हें और तुम्हारे साथियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। What? तुम्हें फांसी की सजा सुनाई गई है, तुम खुश हो रहे हो? ये एज तो नए नए ड्रीम्स पूरा करने की है। ड्रीम तो मैंने बचपन में ही देख लिए थे जी। ये देख रहे हैं आप? इस मिट्टी को तुम ड्रीम कहते हो? ये मिट्टी जलियांवाले बाग की है और इसमें खून मिला है मेरे देशवासियों का। इस मिट्टी की आजादी ही मेरा लक्ष्य है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी फांसी से इस देश को आजादी मिल जाएगी? नेवर। जब बहता खून शहीदों का, तकदीरें पलटी कौमों की। बस इसी तरह मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी आजादी, ये कुर्बानी जाया नहीं जाएगी। भगत सिंह, तुम्हारी फांसी में ज्यादा समय नहीं बचा है। कोई आखिरी ख्वाहिश? एनी लास्ट विश? खून से खेलेंगे होली गर वतन मुश्किल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। वक्त आने दे, बता देंगे तुझे है आसमां। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। इनकलाब जिंदाबाद।
हम सिर्फ तीन हथियार नहीं है जिसको एक पहिया ढो रहा है, हम सबूत है लाखों कुर्बानियों का, जिसके बाद देश ने आजादी का सवेरा देखा। पर अफसोस राष्ट्रीय त्योहार की अगली सुबह लोग हमें भूल जाते हैं। बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा है तो अभी, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लो जरा, मर जाओ या जी लो जरा, खुशियाँ झूम लूं या रो लूं जरा, मर जाओ या जी लो जरा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। धूप में जलते हुए तन को छाया पेड़ की मिल गई, रूठे बच्चे की हंसी जैसे फुसलाने से फिर खिल गई, कुछ ऐसा ही महसूस दिल को हो रहा है, बरसों के पुराने जख्म पे मरहम लगा सा है, कुछ ऐसा है इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लो जरा, मर जाओ या जी लो जरा, खुशियाँ झूम लो या रो लो जरा, मर जाओ या जी लो जरा। जिनसे दिल की शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना है जब तक दिल में जान है। जय हिंद, जय हिंद। खुद से निकल जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, हम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल।
जाने दे इस पल की ये गुजारिश है, मरना क्यों जी लेना बूंदों को, पी लेना तेरे ही सपनों की बारिश है। पानियों को रस्ते तू बनाने दे, रोशनी के पीछे खुद को जाने दे। ये पल खुद से निकल, जीते चल, जीते चल, जीते चल। गगन के छोर भारत में भरी उड़ान है, अब आत्मनिर्भर भारत से दूर ना आसमान है। प्रगति और विकास का आनंदोत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव है। ये महोत्सव है नए भारत के निर्माण का, बलिदानों के सम्मान का, महिलाओं के उत्थान का, अब सर्व के कल्याण का। जन जन का उत्सव है, हर मन का उत्सव है, ये महोत्सव है, ये अमृत महोत्सव है। हर कदम आगे बढ़ाना है, एक नया सूरज उगाना है, हमने मन में ठाना है, स्वर्ग धरती पर ही बनाना है। नए संकल्पों का अवसर है, भारत माँ को नमन सौंपा है। जन मन का उत्सव है, हर मन का उत्सव है, ये महोत्सव है, ये महोत्सव है। इस आजादी के अमृत महोत्सव को देखकर मेरे हृदय में एक नई ऊर्जा, नई ताकत और नया हौसला उत्पन्न हो गया है, जिससे मेरा मन यह कहने के लिए अत्यंत उत्सुक हो रहा है कि हम उन वीरों के वंशज हैं जो भाल पे काल सजाते थे। हम उन वीरों के वंशज हैं जो भाल पे काल सजाते थे, जात पात और धर्म छोड़कर इस देश पे प्राण गवाते थे। चिर अखंड रखना है हमको अमृत विजय महोत्सव को, प्राणों की उन आहुतियों पर नतमस्तक हिंदुस्तान है, नतमस्तक हिंदुस्तान है। 100 जन्म भी जिस पर न्योछावर, वो भारत देश महान है, वो भारत देश महान है। ये भूल नहीं है धरा हमारी, ये भूल नहीं है धरा हमारी, ये सदियों का अभिमान है, ये सदियों का अभिमान है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
India has channelized her civilizational strength and cultural diversity into a brand new future and opportunities for achievement, progress and prosperity for its billion-plus citizens, making our country an inspiration for the rest of the world. This successful journey of 75 years wouldn't have been possible without the support of the common man of India. Each and every citizen of India has contributed to their best, be it of entrepreneurs, economists, sportspersons and scientists. All have channelized their energies to ignite India towards the road to achievement and accomplishment. India has made a mark globally. So here we have the students of class 9 presenting before you our motherland's journey towards the summit in their presentation, India at 75. post-independence era. We have Pandit Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of our country, with us today. A freedom fighter who made countless sacrifices, went to jail several times, and made the roadmap for the development of independent India. Welcome, Chacha, to our celebration. What were your thoughts on the eve of independence, Chacha ji? We had the gargantuan task of nation building on our shoulders, and I felt that for my country to progress, education of young minds was necessary. So, I established several institutions that included the All India Institute of Medical Sciences, Indian Institutes of Technology, Indian Institutes of Management, and National Institutes of Technology. My first 5-year plan focused on industry and agriculture, but we also promised to provide compulsory primary education to all children of India. We made huge investments in public sector,
in steel, iron, coal and power industry that also saw a growth of 7% from independence to 1965. Apart from all this, we also made huge investments in various initiatives such as free milk and meals for children in order to combat malnutrition. How inspiring it is, Chacha Nehru. The whole nation salutes you for your vision for your country. Next, we have Sardar Javed-bhai Vallabhbhai Patel, counted amongst one of the greatest figures of history of modern India. A prodigious and a brilliant student. He was a barrister by profession and one of the most successful law practitioners in Ahmedabad. His commitment to independent India was total and uncompromising, earning him the title of Loh Purush. Welcome Vallabhbhai Patel ji to our celebration. What did you feel was the most important task for independent India, sir? You see, our country did not look like what you see today. There were 565 princely states which were self-governed. We could not dream of unity in such a country. We had to give them the options of joining India or Pakistan or remain independent. I persuaded them. I had to even use force, and finally 562 states agreed to accede to India. My aide T.V. Menon was a huge support for me. Undoubtedly, you are called the Loh Purush Vallabhbhai Patel. We did face some problems with 3 states, Jammu and Kashmir, Junagadh and Hyderabad. But my will, was very strong. I was determined to unite the country and was successful in integrating all the 3 into India. The spirit of unity which runs in the veins of every Indian is your gift indeed. It was a great pleasure to share the stage with you both. Please have your seats, sirs. Now, I would like to call my co-anchor Tanya to please take over. Thank you. Greetings to all on 76th Independence Day. Industrial development, we all understand, is the most important sector for any country to grow and progress. In January 1944, 5 Indian industrialists, including J.R.D. Tata, G.D. Birla, and 3 Tata technocrats published the Bombay Plan, the first ever plan for long-term economic development for post-independence India. It was a first stop for the British, as it proved that Indians could plan their own future. It was truly a stepping stone as the industries developed by leaps and bounds after independence. Let's meet some iconic industrialists who have changed the face of India. Now let's put our hands together for Indian stalwarts. Sir Ratan Tata, Sir Azim Premji, Sir Anand Mahindra, Sir Kumar Mangalam Virga, and Sir Gautam Adani. Good morning, Sir Ratan Tata. What message would you like to give to our friends today? Children, none can destroy iron, but its own rust can. Likewise, none can destroy a person, but its own mindset can. So don't allow your mindset to impede your growth.
Think positive. You all have the potential. Go and make a difference. My blessings to all of you. Sir, your family and your council has set examples of philanthropy. The country will always remain indebted to you. Thank you so much. Now, I would like to call Sir Azim Premji, the Tsar of Indian IT industry, the founder of Wipro. Sir, we are so proud to have you here today in our school. What advice would you like to give to our students on this auspicious occasion of completion of 75 years of independence? My dear students, if the people are not laughing at your goals are too small. So remember to aim high. Work hard, be compassionate to the people and to yourself too. You all have to take your country to the pinnacle of glory. Sir, we will surely follow what you say. Thank you so much. Now, I humbly request the chairperson of Mahendra and Mahendra, Shree Anand Mahendra sir, to tell us about his path of achievements. Children, you are the leaders of tomorrow. Remember, leaders don't look behind. They don't look to the side. They look ahead. So keep yourself focused. Do not let trivial distractions shift your focus from what is important for your progress. My blessings to all of you. Thank you so much, sir. I would like to request Sir Aditya Birla to come and tell about his journey of life. Children, my golden rule is that you must follow your passion and do something that's close to your heart. So children, follow your heart and success will always follow you. Don't ever try to make others. Be your individual self and go make a mark in the world. I wish you all the very best for your future. We aim to follow your footsteps, sir. Last but not the least, my request to the chairman of Adani Industries, Mr. Gautam Adani, who is managing such a huge business empire, to tell his business mantra. Business is all about risk-taking and managing uncertainties and turbulence. You may call me brave for that. My investment strategy has been to focus on sectors that are a national priority for India. Sir, what is your hope for India? I think India will be one of the world's top consumption centers, service and manufacturing hubs. There is no better time to bet on India than now. Thank you so much, sir. I would like to thank all of you for being here. We are indebted to have your precious education here today at SSDC. This way, please. Before I take your leave, may I invite my co-anchor Varnika to take over. Thank you. A country can grow and develop only when its economic affairs are managed professionally. India is proud to have produced world-class economists who have made India the sixth largest economy in the world, with a total GDP of $3.2 trillion. They make our think tanks. Let us meet some of them right here. So, let's meet the economists who have brought an economic revolution in the 1990s as the Finance Minister of India in the Narasimha Rao government and opening the doors for globalization. There has been no looking back ever since. So put your hands together for our former Prime Minister, Dr. Manmohan Singh. And the Nobel laureate, Dr. Amartya Singh. Sastriyakal, Dr. Manmohan Singh. Namaskar, Dr. Singh. Sir, our audience is eager to know that why did you think of liberalizing the business policy of the country? My friend, I feel that if you have a relatively controlled economy, cut off from the rest of the world by infinite protection, nobody has any incentive to increase productivity
and to bring new ideas. This is what inspired me to do what I did, and I will be the first person to admit that we could have done more. Very rightly stated, sir. Undoubtedly, you became the best choice to become the Prime Minister of our country. Our country will remember how you helped our GDP to grow, enacted the Special Economic Zones Act and the Rural Employment Act in 2005. Sir, same. You were awarded the Nobel Prize for your work on welfare economics with focus on poverty and famine. What are your views on poverty? Poverty is not just lack of money. It's not having the capability to realize one's full potential as a human being. You mean to say that humanity is poverty's biggest failing? Yes, you must enrich your thoughts to live a complete life. My philosophy, my writings, and my theories are a result of my devotion to read books all the time. I have read the epics, the Indian history, the history of the world, and the philosophers of the world. Everything that can add to my insight. What message do you have for Indians today? My message to Indians is to respect the democratic ideas of the country and abide by them and make them stronger. So true, sir. We all have to respect the freedom we enjoy and learn to give space to our brethren for a true democracy. It had been a great talk with you, sirs, and I'm thankful to you from the core of my heart. This way, please. Now, before I take your leave, I would like to call my co-anchor Anushka to please take over. Thank you. What do we hear? Is the rocket being launched? Oh yes. Namaskaram. We are at ISRO, Indian Space Research Organization, with our proud women scientists who are breaking the space ceiling with their hard work and enthusiasm. So now we have with us Ma'am Ritu Karigal, Ma'am Nandini Harinath. Namaskaram, ma'am. Ma'am Momita Nanda. Namaskaram, ma'am. Ma'am Ritu Karigal. Namaskaram, ma'am. Ma'am Anuradha DK. Namaskaram, ma'am. Ma'am Elkolamati. Namaskaram, ma'am. Ma'am Meenal Sampat. Namaskaram, ma'am. And at the last but not the least, we have Ma'am Jessie Thomas. Namaskaram, ma'am. I'm really glad to have you with us today. Ma'am, you know, our students are really anxious to know about ISRO. So, what message would you like to give on this auspicious occasion of completion of 75 years of independence? I am Nandini Harinath. Our major achievement is the Chandrayaan, which was the first moon probe launched by India. Remember that time when you all sat with bated breath glued to your screens to watch the launch? One of our major achievements has been launched the Mangalyaan Mars Orbital Mission, India's first interplanetary mission to planet Mars, with an orbit aircraft designed to orbit Mars in an elliptical orbit. India is the first country in the world which has achieved it in its very first attempt. Hello students, welcome to the Indian Space and Research Organization, ISRO. Do you know, we function in the following areas: broadcasting, weather forecasting, telemedicine, cartography, distance education satellites, and so on. We are very proud to tell you that ISRO has launched 405 satellites so far.
in which 179 are foreign satellites and 226 are Indian satellites. Imagine other countries approach us to launch their satellites. Did you know ISRO has made all this possible and made India really proud? I'm N. Vanamati. I'm so glad to tell you that our SLV project was launched under the leadership of Dr. APJ Abdul Kalam in 1980. GSLV, the Geosynchronous Satellite Launch Vehicle, was successfully launched in 2001, and there have been 10 launches of GSLV. Aryabhat was the first satellite which was launched by ISRO way back in 1975 by Russian rocket launcher. Congratulations on completion of 75 years of independence. Do you know ISRO has created India's own GPS system for navigation in marine vehicle tracking. Also, we have a vision to harness space technology for national development while pursuing space science research and planetary exploration. It is the most prestigious place for engineers to work in. Namaskaram from Tessie Thomas. I think in your school I was honored by being made the personality of the month in July. Thank you so much. You must know, most of us scientists have not attended any Ivy League university. We are mostly from middle class or poor families. Our effort is to reach the roots of space science to common man, which was also the dream of our founder, Dr. Vikram Sarabhai. In a nutshell, I can say that a constant effort is being put by our ISRO scientists to make India really proud in terms of space science. My dear young students, all of you are welcome to join us if you really desire to make our nation proud. Thank you. I would like to thank each one of you for coming here and telling us about ISRO. Now the time comes to call our 11th President of India, the man who was behind the launch of Pokhran 2, which was a series of 5 nuclear test explosions in 1998. The man who devoted his entire life to science and technology and also got the title of Missile Man of India. Yes, you have guessed right. The one and only Sir Dr. APJ Abdul Kalam. Namaskaram, sir. Sir, we are really pleased to have you with us today. So, sir, what message would you like to give to inspire our students on this occasion of completion of 75 years of independence? My dear students, we face failures many a times in our life. But remember, if you fail, never give up. Because failure means first attempt in learning. Have an aim in life. Continuously acquire knowledge. Work hard and have the perseverance to realize the great life you have been gifted. Thank you. God bless you all. Thank you so much, sir, for inspiring advice. We will always remember it. This way, sir. Before I take your leave, I would like to call my co-anchor, Varnika, to please take over. Here we have our skilled sportspersons who have swept the world with their sportsmanship. So, let us hail their achievements as they have given India recognition worldwide and swelled our hearts with pride. So, let us applaud for our sportspersons.
छूने की हद तक जीने की ख्वाहिश तको तुमने वो बात है हम सभी साथ है दिखला भी दो What a glorious Satar indeed. Now put your hands together for our honorable Prime Minister, Mr. Iconic speech on AZADI का अमृत महोत्सव. मेरे प्यारे बच्चों, जब हम स्वतंत्र हुए तब हम इतने साधन संपन्न नहीं थे, किंतु फिर भी हमने एक हाथ से अपना पेट भरा और एक हाथ से अपने पड़ोसियों की मदद की, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं। जब संपूर्ण विश्व वैश्विक महामारी के संकट से जूझ रहा था, तब भी विश्व के संपन्न देश भारत की ओर आशा भरी दृष्टि से निहार रहे। हमने अपने धर्म का निर्वहन किया, न सिर्फ अपने देशवासियों को संकट से उबारा, अपितु विश्व का कल्याण हो की भावना से काम किया। मुझे यह कहते हुए संदेह अथवा संकोच नहीं है कि भविष्य में भारत ही है जो विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा, जिसमें महती योगदान हमारे सैनिकों, राष्ट्र निर्माता शिक्षकों, चिकित्सकों एवं प्रत्येक आम जन का जो दिन रात राष्ट्र की उन्नति के सतत प्रयास में लगे हैं। अतः मेरे प्यारे भारतवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! have brought our motherland to the summit of success with global recognition. People of the world look towards our native land with hope and aspirations. Our heartfelt salute to our native land. I humbly request our Chief Guest Ma'am to address our children on this auspicious occasion of AZADI ka AMRIT MAHOTSAV. मैं यहाँ के लोगों का कैसे धन्यवाद करूं। मुझे यहाँ आने से पहले इतना एहसास भी नहीं था कि जितना यहाँ के गुरुजनों ने बच्चों को सिखाया। मैं मानती थी कि ये संस्था बहुत कुछ करती है, लेकिन इस तरह बच्चों ने कार्यक्रम किया कि मेरे पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। मैं स्कूल और पूरे मैनेजमेंट और पूरे गुरुजनों का आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय देके बच्चों को बहुत अच्छा तैयार किया। ये सब प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो कुछ यहाँ पर दिखाई गई, सब प्रैक्टिकल चीज़ें। ये नहीं कि कोई ऐसा लग रहा था कि बनावटी डांस ड्रामा हो रहा है, नहीं, ये सब शिक्षा पर चीज़ें थी। मैं इससे बहुत खुश हूँ
और मैं यहाँ की प्रिंसिपल सोमनाथ जी और राजीव सोनी जी और मैनेजमेंट का कैसे आभार प्रकट करूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। मुझे बहुत कुछ बच्चों के लिए कहना था, लेकिन इस समय मेरे पास कोई शब्द नहीं है। इन सबको देख के बस एक कहना चाहूँगी मैं अपने प्यारे बच्चों के लिए कि जितना भी हो सके दूसरों की मदद करना। जैसे आपका स्कूल का मैनेजमेंट गरीब बच्चों की भी बहुत मदद करता है, उस तरह आप भी भावना रखना, दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना। और इसके अलावा मैं क्या बोलूं, मेरा तो सर मतलब खुशी भी बहुत हो रही है और बयान भी नहीं कर पा रही हूँ कि मैं क्या बोलूं। मैं इतनी आभारी हूँ यहाँ के मैनेजमेंट की जिन्होंने मुझे बुलाया, और बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चों, तुम लोग जिंदगी में सब कुछ बनना, देखो IAS बनो, PCS बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, सब कुछ बनो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अपनी गुरुओं को कभी नहीं भूलना। एक कहावत सुनी होगी, गुरु गोविंद दाई पर आगे लागे पार, बलिहारी गुरुदेव की जाके दिए बताए। गुरु का जो दर्जा है भगवान के दर्जे से बड़ा होता है। माँ का दर्जा भी बाद में आता है, पिता का दर्जा भी बाद में आता है, लेकिन गुरु का दर्जा पहले है। मुझे इतना ही कहना है। Thank you, ma'am, for your motivating words. May I humbly request our Reverend Sir Kunj Bihariji and Sir Ajmani to present a token of love to our esteemed chief guest. देवियों सज्जनों और प्रिय बच्चों, मुख्य ऋषि के परिचय में हम लोगों ने सुना कि शिक्षा के दौर में हम अक्षर ज्ञान को बहुत प्रयास कर लेते हैं, लेकिन कई बार कुछ संस्कार कम रह जाते और उसके कारण से जो हमारे परिवार के वयोवृद्ध लोग हैं उनकी उपेक्षा हो जाती है और हमारी उस कमी को हमारी मुख्य अतिथि महोदया दूर करती है। उन्होंने जिन परिवारों से वयोवृद्ध लोगों की देखभाल कम होती है उसको वो अपने स्वराज्य आश्रम में रख करके उसकी सेवा और देखभाल करती है। इस अवस्था में जब उनका स्वास्थ्य ठीक है उस समय भी, और एक बार कहीं बात हो रही थी तो सैकड़ों लोगों के अंतिम संस्कार की व्यवस्था मंजू भाटिया जी ने की है। हम उनका बहुत आभारी है, जो हमारी न्यूनताएं है उसको आप दूर करते हो और ये संस्था उनके जो महान यज्ञ चल रहा है उसमें छोटी सी आहुति 1 लाख रुपए की हम मंजू भाटिया जी को भेंट कर रहे हैं। मैं आदरणीय प्रधान जी से और राजीव सोनी जी से कहूँगा कि वो राशि
मंजू भाटिया जी को प्रदान करें। शर्मिंदा नहीं है, ये हमारा एक कर्तव्य है जिसकी हम पूर्ति कर रहे हैं। जो आप हमारा काम कर रहे हैं, हम कई बार अपने बुजुर्गों को नहीं देख पाते, उनको आप देख रहे हैं, तो इसमें हमारा एक छोटा सा योगदान। एक आश्वासन मैं और दे रहा हूँ, स्वराज आश्रम में या आजकल अपने शहर में भी कई जगह विद्युत की परेशानी हम महसूस करते हैं। उनके स्वराज आश्रम में 5 किलोवाट का एक सोलर पैनल की व्यवस्था भी हमारी संस्था उनको कराएगी। और मैं निवेदन करता हूँ कि छोटी सी भेंट अपने महान यज्ञ में हमारी छोटी सी आहुति आप स्वीकार करें। अगर किसी के घर कोई संस्कार करने वाला ना हो तो मैं घाट पे खुद जाती हूँ और अग्नि भी खुद देखती हूँ। आप जरूर बता सकते हैं। लेकिन मुझे उसका अनुभव है। हमारी सभा मृतकों को रखने के लिए एक ऐसी कुटिया की व्यवस्था करती है। 4-5 वर्ष पूर्व बहन जी के पड़ोस में किसी ऐसे ही व्यक्ति की मृत्यु हुई जिसको संस्कार करने वाला कोई नहीं या जिसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। यहाँ के गेट पर मेरा ही फोन नंबर लिखा हुआ था। बहन जी ने फोन किया कि हमें कोफिन चाहिए और मैं देने के लिए जब आया तो बहन जी ने पूछा वहाँ कौन मिलेगा जो देगा। मैंने कहा मैं स्वयं आता हूँ। मैं जब स्वयं यहाँ देने के लिए आया तो बहन जी वो कोफिन लेने के लिए भी स्वयं आई थी, उन्होंने किसी को भेजा नहीं था। तो उनका सेवा भाव की सराहना जितनी भी करें वो कम है। वो शब्द उनके सेवा की भावना को प्रकट करने के लिए पर्याप्त नहीं। I would like to request our Honorable Principal Ma'am to propose the vote of thanks. My hearty wishes and blessings to everyone on this AZADI ka AMRIT MAHOTSAV. The whole country is resounding with cheerful sounds of celebrations, and I'm so very glad that the same sounds are reverberating here in our school today, and what students have presented today and what our inspirations have spoken here today is definitely going to prove for everyone to be a lifetime inspiration. We are going to take from here so much of motivation that every moment of our life we feel inspired to dedicate our efforts to our motherland. For my students, I have penned down a few lines in Hindi. So I would like to dedicate these lines to this day for my children. This is for you. है ये पर्व हर्ष का, उस अमर संघर्ष का प्रकाश जिसका आज भी प्रद्युत करे हर एक मन। लो ये मशाल हाथ में, चलो तुम भी निकल पड़ो, वो राह जो दिखा गए है वह तुम्हें पुकारती। जय माँ भारत भारती, शिक्षा तुम्हारा अस्त्र हो, चरित्र मात्र शस्त्र हो, कसी सदा कमान हो, प्रयत्न ऊर्जावान हो, लक्ष्य से नजर हटे नहीं, कदम कभी रुके नहीं, कर्मनिष्ठ तुम बनो, मन रोष ना गुमान हो। न सोच सफल हो या ना, प्रयास विफल हो तो क्या, एक छाप छोड़ जाओगे, कर्ज जिन्होंने बलिदान दिए उनका उतार जाओगे। वो छाप याद दिलाएगी तुम्हारे सत्कर्म को, निष्काम कर्म धर्म को, अमर तुम्हें बचा जाएगी, अमर तुम्हें बचा जाएगी।
I would like to express my extreme gratitude to our chief guest, Madam Manju Bhatia. For a very long time we were trying to have you here as our honored guest. I am so glad that on this most auspicious occasion of AZADI Ka Amrit Mahotsav, you were here to hoist the tricolor amongst our students. Thank you so very much, ma'am. Whatever, please don't feel so overwhelmed. Whatever we do for you or for your Swaraj Ashram is just a tiny drop in front of what you are doing for them. Thank you so much. My gratitude to the Madam Principals of our family, Madam Pooja Mishra, Headmistress Madam Sonu Srivastav, Headmistress Madam Namita Minocha, for the huge support they have given in paying a befitting tribute to this day. My gratitude to our oceans of motivation, our management committee members and the SABHA members. They are not just present here, they always encourage us to do better and better, to perform better and better, to bring something new every time. It is only because of the encouragement that they give us, because they also look forward to what we have here for them. Not just that they have to be here because we are presenting something here. So thank you so much for everything that you do for us. And I'm sure, children, you will take back this message today of dedicating yourselves to your motherland, the way these oceans of motivation are dedicating themselves to these institutions, so that each one of you is able to sparkle as a shining gem in the near future. My hearty gratitude to all the teachers who have worked so very, very hard, who have guided each and every student to perform here in the most impeccable manner. Let's give all the teachers and all the participants a huge round of applause so that each one of them remembers this day. Thank you so much, everyone. My gratitude to the parents also who have imparted their cooperation, their support to us at each and every moment that we have been able to present here for everyone today. Thank you one and all once again, and let this be a lifetime inspiration for everyone. Once again, Jai Hind. Thank you, ma'am, for your erudition. We will surely follow the values given by you. Now, may I request all to rise up for the national song. बेटा बेटा बेटा